ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਕੁਚੈਲਾਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਕੁਚੈਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟੋ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਛੋੜਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟੀਦਾ। ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਲਬੋ ਰੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਨਾਲ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਝੂਠੇ ਤਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਝੂਠੇ ਜੱਪੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਕੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂਹੋ ਕਲਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਹਣਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਾ ਤਕਸੀਰ ਸਭ 'ਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਹੀ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਨਾਦ। ਧੁੱਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਭ ਧੁੱਪਾਂ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਤੰਗੜ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਸਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਛੀ ਵਕਰਾਂ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 1400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरे प्यारे, मेरे कुग्गू कोड़े, मेरे खडोने, मेरे मठोरे सारे कैसे ने? ठीक हो ना बई? एक अल्लाह ताला नया दिन दिता, सोहना दिन, चमका मारदा है धुप्पां दे नाल। ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਗਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਸਵਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਜੇ ਸੰਵਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੇ ਔਰ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਈ।
मेरी एक गल सुनो, हर वक्त कम कम कम, घरां दे ते कम ही नहीं मुकदे। कदी बखावन साहब का कोई ये मतालबा आ जाता है, तो कदी पुत्रां का, तो कदी धियां का कि अम्मी जी यह बना लो, तो मामा ये बना दें, तो मामा वो कर दें। मगर मामा नू अपना भी तो ख्याल करना है ना, अपना ख्याल किन्ने करना है? अज वो दौर है कि तुसी अपना ख्याल खुद करना है। तो मैं भी जो हूँ ना, अपना ख्याल खुद करती हूँ, हमेशा ही करती हूँ। लेकिन इंसान फिर भी बंदा बचत है ना, दिल करता है कि कोई दूसरा भी हमारा एहसास करे, तो हम दूसरों का एहसास भी लेके, एहसास की ज़रूरत महसूस करते हुए उसकी तरफ देखते हैं। और उसको तो एहसास भी नहीं होता कि जी दूसरे इंसान को कि आपके लिए कुछ करना है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम खुद ही अपने आप को संवारें, सजाएं, फूलों की माने बन जाएं। ये देखें कितने प्यारे फूल, ये फूल, ये रेड फूल, ये देखें। ऐसे हमें भी बनना चाहिए, हमें भी अपने आप को सजाना चाहिए। कभी कभी मेकअप कर लिया करें, कभी कभी आप मेरी बहनें जो हैं, कभी कभी सोने सोने कपड़े पहन के घर में बैठा करें। ज़रूरी तो नहीं हमने कपड़े उसी वक्त ही पहनने हैं जब हमने कहीं बाहर जाना है। क्यों भाई, हम अपने लिए क्यों ना तैयार हों, अपनी फैमिली के लिए क्यों ना तैयार हों, क्यों ना सज बन के बैठे हम अपने घर के में। जब आप अपने घर में भी सज बन के बैठते हैं और काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो देखिए कितनी खुशी होती है। मैं जब अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि यहाँ कनाडा में हम जब कपड़े लेके आती हैं तो हर वक्त यहाँ कोई दावतें तो नहीं हैं और हर वक्त यहाँ मुलाकातें तो नहीं हैं। तो मैं अब ये करती हूँ कि मैं कपड़े नए निकालती हूँ, पहन के घर में बैठती हूँ। कई दफ़ा मोइज़ आता है, कहता है वो अम्मी जी, अम्मी जी तो नहीं, मादर जान वो कहता है। मादर जान, मादर, क्योंकि आपको पता है अफ़गानी बच्चा है, तो मुझे बोलेगा मादर जान क्या बात है, आज कहीं जाने का प्रोग्राम है? मैं कहूँगी नहीं भाई, तेरा ही वेट कर रही थी तैयार त्यूर होके। तो कितना अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रा मेरी जान तैयार हुआ करें, मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, सारों को तैयार श्यार रहना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहिए। क्योंकि हम कई दफ़ा इतने स्ट्रेस भी हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी बातों की, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं घरों में या अपने रिश्तेदारों में या अपने मिलने जुलने वाले दोस्त अहबाब में, सब में कहीं भी आपकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इग्नोर कर देते हैं, रूह कलम में एक तमानियत आ जाती है, सुख आ जाता है, सुकून आ जाता है कि आपने परवाह ही नहीं की उस बात की। तो अपने आप को उस स्ट्रेस से निकाला करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है आपको पता है आपको दीमक की तरह चाटता है, और दीमक की तरह आपने अपने आप को बर्बाद नहीं करना। दीमक जिस तरह आहिस्ता 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 सा ख़त्म करता है चीज़ों को, और इसी तरह स्ट्रेस जो है ना वो आपको ख़त्म करता है, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि औरत घर की जो है वो घर के कामों में इतनी बिजी होती है, और जब स्ट्रेस भी ले रही है तो फिर तो समझो अल्लाह अकबर, ये कहते काम कर रही है, एक ऊपर से स्ट्रेस भी ले रही है। तो फिर आप खुद ही बताएं कि वो किस तरह मतलब खूबसूरती उसकी कायम रहेगी। तो खूबसूरती तो तब भी आती है जब आप अपने आप को, अपने दिल को, अपने रूह को, अपने मजाज को खुश रखते हैं। आप खुश रहेंगे, आपका घर बार खुश रहेगा, क्योंकि आपकी खुशी से आपके हस्बैंड खुश, आपके बच्चे खुश, और आप खुश खुश जब काम भी करेंगी तो देखें कितने मज़ेदार फिर खाने बनाएंगी, अनवाओ अक़साम की चीज़ें बनाएंगी, और आप खुद भी उस काम से खुश होंगी। आपको एक तमानियत मिलेगी, आपको एक खुशी मिलेगी, और वो खुशी आपको ग्लो देगी, आपको खूबसूरती देगी, आपको प्यार देगी। ये चीज़ें जो है ना मैं खुद ही सीखती हूँ, मुझे खुद ही एहसास होता है। और मैं कोई काम तो नहीं है आजकल मेरे घर में, कोई मुझे इतना काम नहीं होता वैसे, सारा दिन हम फारग ही होती हैं माँ बेटियाँ, सुबह सुबह कर लिया और बाद में, क्योंकि सफाई का भी जो है ना यहाँ का इतना मसला नहीं है इन मुल्कों में। सफाई भी आप बड़ा बड़ा ब्रश पकड़े, ब्रश हो जाएगा, डस्टिंग कर लें, क्योंकि यहाँ डस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती।
तो आपकी चीज़ें आप खुद सलीके वाले हों तो आपका वही घर चमकता हो वही आपको नज़र आएगा, ख्वाह आपने ब्रश ना भी किया हो, सारे फ्लोर क्लीनिंग ना भी की हो तो आपको अपना घर चमकता हो वही नज़र आएगा। तो सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। औरत के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि काम तो सब कर लेते हैं। देखें, काम आप काम वाली भी लगवा सकते हैं, कोई मतलब बाहर से आके भी कोई आपका काम कर सकता है, लेकिन तरीका सलीका अगर आप में होगा ना तो आपका घर हमेशा चमकता रहेगा। आपका घर जो है ना नीट क्लीन नज़र आएगा। इसको कहते हैं सलीकामंदी, तरीका। सलीका शारी ये भी होती है कि आप अपनी चादर के अंदर रहते हुए किस तरह अपने घर को, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अपने बच्चों समेत, अपनी फैमिली समेत। ये भी एक सलीका शारी होती है। तो ये चीज़ें बड़ा काउंट करती थी। हमारे अम्मी जी ये कहा करते थे, वो कहते थे देखो काम वालियाँ तुम्हें मिल जाएंगी, वो सारे काम कर जाएंगी आके, अब खानसाब में मिल जाएंगे, वो खाने बना देंगे, लेकिन जो सलीका है कि खाना बना लेना है लेकिन किचन इंतहाई गंदा है, बर्तनों के ढेर से बेसन भरा हुआ है और एक खाना तैयार कर लिया है और आप उठ के उधर चले गए हैं और सारा किचन गंदा मंदा। नहीं, मेरी अम्मी जी ये कहा करते थे कि जो औरत खाने के दौरान अपने किचन की सफाई पे ऊपर नज़र नहीं रखती तो उसके अंदर इसका मतलब तरीका सलीका नहीं है। तरीका सलीका उसी का होता है जो साथ पका रही है, साथ हर चीज़ को अपनी जगह पे भी, ठिकाने पे भी रख रही है, फैला नहीं रही, साथ साथ समेट भी रही है। ये होते हैं तरीके सलीके। बहरहाल आजकल बड़े रोले पड़े हुए हैं हमारे, जो है ना ये क्या कहते हैं, हमारा सोशल मीडिया अजकल बड़े रोले पे जो रहते, किधरे ते कोई पागल होया है औरत लगे ने, किधरे कोई पागल हो गई ये औरत लगे ने, और इन्नी ज़्यादा ट्रोलिंग, इन्नी ज़्यादा ट्रोलिंग कि तू गल करके जामी कितने। यानी कि ये मजाज बन गया है हमारी कौम का भी, हमारी कौम का भी ये मजाज बन गया अभी जो मैं स्टार्ट किया जिससे कि रूह व कलम में वुसअतें नहीं हैं। कुछ तो हमारे जो करता धरता हैं, जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, कुछ तो उन्होंने अपनी कमबख्तियों से, अपनी जलालतों से, अपनी गलत तरीक़ाकार से, गलत सिस्टम से उन्होंने एक तो कौम को बर्बाद किया, कौम के जहन को ख़राब कर दिया। आज कौम के हाथ में जब सेल फ़ोन आ गए हैं तो वो भी अपने रख रख के बदले लेते हैं। तुम लोग मुंह से बात निकालो, वो सारे के सारे आगे से छट दौड़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि ये उनका अंदर का गुस्सा है, अंदर की वो उनकी क्या कहना चाहिए ख़ास लफ्ज़, एक तो गुस्सा, एक महरूमी है उनकी। क्योंकि जब कोई ऐसी बात करता है तो उनका दिमाग जो है ना पागल हो जाता है। तो सोशल मीडिया आजकल बड़ा फास्ट है। ये जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं इनको बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए, ऐसी बातें नहीं कर देनी चाहिए जिससे कि सारी कौम का मजाज ही तत्था ता हो जाए, तंदूर बल जान जिन्हां दे दिमागां दे विच। गर्मी तो पहले ही बड़ी भी पैंदी है, उतों बिजली भी जाती है, उतों तंदूर पे बलते साढ़े पाकिस्तान दे विच ते सच पुछो तो कुदरत वालों भी तंदूर पे पैंदा है, उतों दरख्त असी कट दिते ने, ना सन दरख्तां दा शौक है, ना सन कोई होर चीज़ां दा शौक है कि असी जी कुदरती आफत है उन्होंने किस तरह अपनी इलम दे जोर ते किस तरह ओहदा तोड़ करना है, वो असी करते ही नहीं। जिथे दरख्त लगे होंदे ने असी वो भी कट कुट के वो सुट्टने हैं। असी कहने हैं कि सानू तो सीमट दे अंबार चाहिए ने, सानू राम राम सुबक सुबक हवावां नहीं चाहिदियां, सानू घनियां दरख्तां दियां ठंडियां छावां नहीं चाहिदियां, सानू तो बस कट्ठो है दरख्तां नूं सुट्टो परे और ज़मीनां दे उत्ते वेचो ज़मीनां उन्हें फसलां जड़ियां लगियां हैं, जिथे गंदमा, जिथे लहलहांदे खेत। वो कहते हैं कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है,
हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो जनाब ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ठीक है ना। लो जी सज्जन मित्रों, देखो बाहर जरा अच्छा सब लगे आ रहा है जी। ए देखो कार जी है ना, रिवर्स करते ने पे ते ओनू पार कर रहे ने। ए ड्राइवे ते आ गए और ए कार जी है बिल्कुल एक्यूरेट 19-20 ਦਾ फर्क नहीं आ खड़ी की ने। फारग हो गया आ गया इन्हों की अज और एक ही खिलात सी मेरा ख्याल है। तो फिर कहते सा मैं जिम जावांगा, फिर जिम चले गए होंगे तो जिम तो हम वापस आए हैं। अभी आते हैं अंदर तो फिर देखते हैं क्या हालात हैं जनाब के, शाह बाबा जानू के। वैसे तो नहा धो के तैयार हो के गए थे। ये देखें ये लगे आ रहे हैं। बाहर ही निकल जाऊँ ताकि इनसे गपशप बाहर ही लगाऊँ थोड़ी सी। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। नहीं हम नहीं बोलता हम खामोश रहते हैं। आप खामोश तो कभी नहीं रहा, जब बात करता है तो मैं कहती हूँ कि ऐसे कपड़ा फाड़ के निकलता है भाई। वो करता है जब हक सच का बात होता है बाबा। अरे बाबा बोलता कई है, दफा खोल सच के का बोल। समझना आवे है तुम्हें। ओ बाबा कई दफा तुम्हें सच का समझना आवे है और तू बोलता है। तो आ गए हैं। मैंने कहा कि व्यूवर्स को ज़रा दिखाऊं आपका, क्योंकि स्टार्ट की थी अभी। तो आपने सलाम दुआ कर लिया है? नहीं मैं तो अभी आया ही हूँ, आपने हम पे हमला कर दिया दिया। है। हम कहाँ से सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब ठीक ठाक अस्सलाम। है। वो हमारी बहन क्या कह रही हैं पता नहीं इनकी भी सुन लें, इनकी भी। है जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक। मैंने कहा ज़रा वीडियो ही बना लूँ भाई निकल के। मैंने कहा शाह बाबा को ले लूँ, कवर कर लूँ ज़रा। कवर करें हाँ जी कवर करें। कवर करें। अच्छा शाह बाबा भाई ग्राउंड में अब पानी नहीं देना? नहीं वो बाप लोगों का काम है। नहीं यार मैं पैर भी काम करूँ ये भी नहीं तो आपको खुद देखना आप कह जाती होती है ना, तो अब मैं तो 4-5 दिन से सोच रही हूँ कि इन्होंने पानी लगाने की कोई बात ही नहीं आप तो काश्तकार फैमिली हैं। की। नहीं मुझे नहीं पता, मैं जा एग्रीकल्चर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, आपको तो पता होना चाहिए। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो लाहौर शहर में रहती थी, काश्तकारी होती थी ज़मीनों पे, उधर कभी रहे ही नहीं हम। हाँ वालिद साहब आपको बताते होंगे ना। नहीं नहीं वालिद साहब का भी कोई चीज़ से तो ये दिया करें यार। तो आप पानी लगाएं बैठे। इसमें डाल के। ये वो नीचे वाला ना लड़का, हाँ इसको नहीं लगाना, इसको लगा ले मुएज। वो आप करेंगे ना इसका, मैं जरा ऊपर से वो। अच्छा मुएज मुएज जानू पुत्र ये जरा भाई लगा दे। हाँ ये वाला तो जरा शाहजहां का सारा और लग जाए। ठीक है। मुझे जानू भी आ गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। कल ये लोग बड़ा थक गए, उधर वंडरलैंड उधर गए हुए थे, वंडरलैंड ही था ना, वंडरलैंड गए हुए थे कल ये लोग। तो बड़ा ज़्यादा मतलब इन्होंने वो राइड्स ली और थक थका के नहीं इनका बुरा हाल हो गया। तो अब ये थके हुए आज फिर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमने कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा ये ज़रा कर लीजिए पानी का ना। ये क्या है मोहित? ये पानी लगाते हैं ना तो उसका सारा वो चारों तरफ ना पानी घूमता रहता है। A few moments later. ये जी ओ टी दोनों के। ओ ठीक तो है। मैंने ज़रा जा रही हूँ, एक मिलाद है उधर जा रहे हैं तारक भाई का, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। तो फिर मैंने कहा कि पिज़्ज़ा भी चले साथ लगी चले। तो अब अच्छा सब निकले हैं तो फिर हम मुझे जानू निकलते हैं। ये देखो ये भी मुझे मैं पिज़्ज़ा नहीं आली समेटा नहीं है। मैंने कहा मैं समेल लूँ। काम तो आपको पता है और घर से जाते हुए भी करती रहती है। ख्वाह वो घर में है या नहीं, उसका दिमाग घर पे ही होता है कि क्या करना है। आई वो रह गया, आई वो रह गया, ये रह गया का चक्कर जो है ना चलता रहता है। ये रखे अंदर। मैं रह गया। हाँ जी व्यूवर्स, हम निकले हैं पिकरिंग के लिए। पिकरिंग में मॉस्क है जहाँ ये इस साल इस वक्त के लिए दुआए खैर के लिए रखा हुआ है तारक भाईजान के लिए। तारक महमूद शाजिया के जो हस्बैंड है हमारी दोस्त के,
अल्लाह पाक उसको सब्र दे, उस फैमिली को। तो बस उधर ही निकल रहे हैं। तो अब अल्लाह करे कि आगे रश ना हो, हम पहुंच जाएं टाइम पे ना। हाँ कि अपना चेहरा लाएं, जबकि मुझे इतना नहीं होता कि अपना चेहरा लाऊं। अगर मैं व्यू भी दिखा रही हूँ और पीछे बात कर रही हूँ तो कोई इतनी वो भी अच्छा लगता है, लेकिन सारे मुझे कहती हैं अपना चेहरा दिखाया कर। लो जी, दिखा दिया आपको अपना चेहरा, ठीक है। तो जो हम आगे जाएंगे फिर मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाती जाऊंगी, ठीक है। ओके। ले जी, इधर भी ट्रैफिक जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सिरकती हुई जा रही है। काम जो है ना हाईवे है, ये हाईवे पे हम आ गए हुए हैं। काम जो है ना बस इधर चुके ही हुआ है और हमें ज़रा जल्दी थी। हम चाह रहे थे हम 3 बजे तक पहुंच जाए, लेकिन मुझे लग रहा है हमको साढ़े 3 अल्लाह करे 3:30 तक पहुंच जाए। शाहजहान ने फ़ौरन कह दिया 4, मेरा दिल डोल गया। नहीं, इसीलिए आपको अल्लाह सबक सिखा रही हैं कि जल्दी किया करें। तो ये टाइम के सिलसिले पाबंद हैं नहीं है सारे। तो खत्म। खैर से हम पहुंचे बस। पता नहीं इतने रश ये वीकेंड पे। वीकेंड पे तो ये मैं तो होना यही चाहिए। हैरान रहती हूँ हमेशा वीकेंड पे इतने रश, इधर इतनी गाड़ियाँ, दूर तक गाड़ी। और मिड डे 3 बज रहे हैं ओफ भाई, 3 बजे। ये कौन सी छुट्टी, मतलब पता कि कोई नहीं, वर्किंग कौन डे सा- है कि छुट्टी हुई है? कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। और अगर किसी ने कम्यूट करना है ना, किसी और जगह जाना है तो वो 2 बजे तो नहीं निकलता ना। वो तो निकल जाएगा, सुबह निकलेगा, मॉन्ट्रियल जाएगा, इधर जहाँ भी। तो उसमें क्या है कि वो सुबह निकलेगा, या ये जो रश है ये पीछे से आ रहा है क्योंकि जी वीकेंड ख़त्म हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। और आगे भी देखे, मैं दूर तक ऊंची जगह थी ना अभी, तो मैंने देखा है दूर तक। हाँ जी व्यूवर्स, बस हम करीब पहुंचे हुए हैं। अब इंशाल्लाह ताला कोई 5 मिनट तक हम उधर होंगे। हम बिल्कुल करीब आ गए हैं अब उसके ना, मॉस्क है मेरा ख्याल है जहाँ वो करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम 5 मिनट तक उधर होंगे। हाँ जी देखें, ये मस्जिद है जिधर हम आए हैं, और इधर तारक साहब का साले सवाब के लिए है। चलो दुपट्टा लो भैया। दुपट्टे पहन ले। अल्लाह ताला उनको बुलंद मकाम दे जी जन्नतुल फिरदौस में। खाना किधर से है? और ये पता नहीं जाना एंट्री कहाँ से है, वो सामने ही लग रही है। ये देखें जी, दोनों आई हैं सऊदी अरब से हज करके। A few moments later. हाँ जी व्यूअर्स, हम सारा जो है ना मस्जिद भी फिरा है, ख़त्म भी हो गया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारी दोस्त, बहुत प्यारी बहन जैसी दोस्त है शाजिया, और उनके बच्चों को अल्लाह पाक उन पे अपनी रहमतें रखे, बरकतें रखे। बहुत अच्छा आज उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था, सारे लोगों को खाना भी खिलाया, और बड़ी अच्छी दुआ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए वो दुआ भी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अता फरमाए हम सब मोमिनीन के साथ। तारक भाई को भी परवरदिगार उन पे अपना रहमत फरमाए और कबूल करे रब्बुल आलमीन। ये उनकी फैमिली ने जो आज खाना सारे अल्लाह के बंदों को दिया। तो मेरा ख्याल है फिजा इसके साथ ही क्या कहते हैं, थके भी हुए हैं, थक से गए हैं, तो इसके साथ ही हम खुदा हाफिज कहते हैं। फिजा जानू भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, अभी थके पे ने। तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। कमेंट्स जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तुहानू पता है बड़े रोले पै ने दुनिया च, बड़े रोले पै ने, तुसी भी रोलियां दे भी सब्सक्राइब कर दिया करो ते कमेंट्स भी कर दिया, शेयर भी कर दिया करो ते शेयर भी किया करो, ठीक है। ते नाल ही तुहाडे कोल इजाजत लैने आ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होंदी है एक नए व्लॉग नए दिन दे नाल। अल्लाह हाफिज।